कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर और जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म। मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टार्स ऑफ पंतनगर। Keep shining. We are happy to announce that this podcast is now officially being sponsored by Indoine Business Group as title sponsors. Indoine Business Group is an agricultural company headquartered in Jakarta, Indonesia. It's currently focused on agricultural inputs, including crop protection chemicals, seeds, fertilizers, and farm mechanization equipments. It gives us immense pleasure to share that Indoine Business Group finds its roots in Pantnagar too, as the company was envisaged by Pantnagar alumni with a goal of completely disrupting agri-input sector, as it operates today with a mission of revolutionizing the product basket and services in ways which deliver maximum value to the farmers. Indoine Business Group has got several companies under its edges, which specialize in different verticals in agricultural input space. The group currently having full presence in Indonesia and also entered Indian market. The plan is to reach all major countries in Southeast Asia and Africa within next 3 to 5 years of time span. The company is already having many Pantnagar alumni in key positions and many more aligned to join soon. And do mark my words, बड़ी जल्दी ये एक ऐसा गढ़ बनने वाला है ना, पंतनगर के जोश और जज्बे से भरे हुए चीतों का गढ़ बनने वाला है, जो एक साथ एक जगह पर जमा होकर के एग्री इनपुट स्पेस के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की तैयारी में है. So I thank Indoine Business Group for being title sponsors for Stars of Pantnagar and also for creating this change. Thank you very much. In order to know more about our title sponsors, please do visit their website at indoinegroup.com. दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मिलाता हूं पंतनगर के सितारों से. आज भी मिलाऊंगा, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका बड़ा अहम योगदान रहा है इन सभी स्टार्स की चमक के पीछे. He is a teacher, he is an author, a table tennis champion, a harmonica player, a martial art practitioner, a philanthropist, and above all, an inspiration to all of us. He is recipient of Dr. C. Subramanian Award for Outstanding Teacher in year 2006, ICAR Best Teacher Award in year 2005, C.V. Kapoor Distinguished Teacher Award in year 2000. He has authored economic study material for IGNOU and also about 100 research papers. He has guided hundreds of agribusiness projects. He is ex-HOD, Agri-Economics Department, Pantnagar. Ladies and gentlemen, now I know that you know him. He is Dr. S.K. Tiwari. Sir, welcome to Stars of Pantnagar. I'm thrilled and honored to have you with us. Thanks for joining us. So first, I would want you to take us through your professional journey, please. Hello, Alok, and all my young friends and listeners. I am glad to reach you all through this show. As for my professional journey, it started in 1977 when I joined as assistant professor in the Department of Agricultural Economics in the College of Agriculture at Pantnagar.
अप्रैल 1977 से शुरू किया, जब 1 अप्रैल 1977 को हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उस समय हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिसर्च ऑफिसर का भी ऑफर था, लेकिन आई वॉज फैसिनेटेड बाई पंतनगर, तो पंतनगर में ही करियर की शुरुआत करना उचित समझा। I have been associated with several important tasks and activities over more than 33 years as faculty member of agricultural economics in College of Agriculture, and also delivering more than 100 training lectures. I published about 98 research papers, which are uploaded at researchgate.net. Besides these core activities, I also wrote 2 units of study materials for IGNOU and authored a manual on career-linked personality development jointly with Dr. S.P. Singh and Dr. S.P. Singh of Agricultural Economics and Dr. Gyanan Sharma of Department of Communication. I also wrote a template on banking, credit and insurance for Uttarakhand Agri Portal. I visited Tokyo in 2000 to present country paper in Asian Productivity Organization seminar, 9-day seminar. I also attended a training course of 15 days at Administrative Staff College of India in 1981. Which was sponsored jointly by Economic Development Institute, Washington, Ministry of Home Affairs and Administrative College of India, and was inscribed as an overseas fellow of Economic Development Institute. I acted as head of department twice, for 3-year term, and I have been member of executive for 4 years of the prestigious Indian Society of Agricultural Economics with its headquarters at Bombay. ICAR's Bharat Ratna Dr. C. Subramaniam Award for Outstanding Teacher for the biennium 2006-07 was also conferred with ICAR Best Teacher Award in 2005 at the university level. And in 2000, I was awarded Distinguished Teacher Award by C.V. Kapoor Education Foundation, New Delhi. मुझे लगता है कि ये जो अवार्ड्स मिले, ये खाली मेरी मेहनत का ही नतीजा नहीं था। इसमें मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और छात्रों की दुआएं भी इसमें शामिल थी। मुझे स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला और मुझे लगता है कि उनकी दुआओं ने भी बहुत काम किया। Actually, I took the life as it came my way, but cared about one thing, and that my next step has to be the best, and for that I believed in planning, preparation and perfection. तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस ये है कि फिक्र को धुएं में नहीं उड़ाया, फिक्र को मैंने पाला और उसके लिए मेहनत की और भगवान ने हमको उसका रिवार्ड भी दिया। There is no substitute of hard work. Hard work can substitute intelligence, but intelligence cannot substitute hard work. Number one. And number two, that success, whatever that means, success is not a sprint, it is a marathon. One has to constantly work with patience and endurance. This phrase I really found very, very beautiful. फिक्र को पालना। मुझे लगता है कि हार्ड वर्क तो इसके बाद खुद ब खुद आ जाना है। सर, कैसा था आपका बचपन और कैसे आना हुआ पंतनगर? प्लीज कुछ और भी बताइएगा।
आप आज से 50 बरस पहले के पंतनगर के बारे में जब आप यहाँ पर आए थे, क्या कुछ फर्क था? आज से आई एम श्योर बहुत डिफरेंट रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा बताएं सर इसके बारे में। पंतनगर आना इसलिए हुआ कि 1960 में हमारे एल्डेस्ट ब्रदर पंतनगर आ गए थे। डिसीजन डिफिकल्ट था क्योंकि एजेड पेरेंट्स उनको नहीं भेजना चाहते थे एक अनएक्सप्लोर्ड और अननोन जगह पर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर बची हुई 2 छोटे भाइयों और एक बहन और माँ बाप की उनके ऊपर थी। लेकिन लखीमपुर खीरी में वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। उनके बॉस थे मिस्टर टंडन आईएएस। तो मिस्टर टंडन जो है वो पंतनगर में फर्स्ट कंट्रोलर के रूप में अपॉइंट हुए थे। तो उन्होंने ब्रदर से कहा कि तिवारी हमारे साथ चलो, तो उनकी वजह से यहाँ पर वो पंतनगर आए 1960 में। जब वो यहाँ पर आए तो उस समय क्वार्टर्स नहीं थे, रेजिडेंस नहीं थे, तो गांधी भवन में स्टाफ को एक एक कमरा अलॉट होता था जो सिंगल आए थे, और जो फैमिली के साथ आए थे उनको 2 कमरे मिलते थे। उसी में एक हेयर कटिंग सैलून भी था गांधी भवन में एक कमरे में, जो पहला रूम नंबर 1 है। इतना भाईचारा भी था आपस में स्टाफ में, क्योंकि थोड़ा स्टाफ था, नई अपॉर्चुनिटीज थी, बड़ा कमिटेड वे में लोग काम कर रहे थे, बड़ा भाईचारा था। एक कमरे में पराठे बनते थे तो दूसरे कमरे में सब्जी बनती थी और लोग शेयर कर लेते थे आपस में। तो इस तरीके से हुआ। फिर जब 1962 में उनको रेजिडेंस मिल गया, जो झा कॉलोनी में रामलीला मैदान के पास कुछ क्वार्टर बने हैं, उनमें से एक क्वार्टर मिला। तो ब्रदर जो है फिर वो फैमिली को लेकर के साथ में आए। तो यहाँ आने पर हमने देखा कि बड़ा रूरल और अर्बन टच दोनों का लाभ है इसमें, दोनों का टच था, दोनों का एनवायरनमेंट मिल रहा था। लेकिन हमारे सामने एक चैलेंज ये था कि पंतनगर में हमको अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड करना था एजुकेशन का, तो पंतनगर में कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल नहीं था उस समय। लेकिन एक बंगला में एक कोचिंग स्कूल जैसा अरेंजमेंट किया गया, जिसमें कि 3 परमानेंट टीचर थे, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी के, और बायोलॉजी और साइंस जो है वो पीजी स्टूडेंट्स पढ़ाने आया करते थे। तो हम इस तरीके से वहाँ कोचिंग से 9th और 10th की प्रिपरेशन हुई, और प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर रुद्रपुर झा कॉलेज सेंटर से अपीयर हुए। पंतनगर में जो स्कूल था 9th 10th का एक कोचिंग सेंटर के रूप में, तो उसमें ऑन एवरी सैटरडे द देन डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर अनंत राव used to visit us for 1 or 2 hours to give us moral education. पैदल आते थे 1 किलोमीटर कॉलेज से उस बेंगला तक। उस समय तक पंतनगर में हॉस्पिटल नहीं था, एक डिस्पेंसरी थी खाली एक बंगला में, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था। यूनिवर्सिटी बस उस समय एक थी जो यूएसआईडी से डोनेशन में मिली थी, ऑटोमेटिक बस, ड्राइवर के पास ही सारे कंट्रोल्स थे दरवाजे वगैरह के। तो वो बस जो है महीने में 2 बार, एक बार किच्छा और एक बार रुद्रपुर जाया करती थी, ग्रॉसरी और बाकी और जो सामान जो है उसको लाने के लिए। और हॉस्टल्स जो है वो केवल 4 थे, गांधी भवन, सुभाष भवन, नेहरू भवन, पटेल भवन। पिक्चर हॉल नहीं था। पिक्चर हम लोगों को जो है वेटरनरी कॉलेज के लॉन में दिखाई जाती थी। तो हम लोग उस समय इंटरमीडिएट कर रहे होते थे, तो भी जो है वहाँ जा कर के बैठ जाते थे लॉन में और
देख लेते थे। जब मौसम खराब होता था तो वेटनरी कॉलेज के एक हॉल में ये मूवी दिखाते थे। कोई बैंक नहीं था, बैंक जो है वो इस समय एग्रीकल्चर कॉलेज का जो कम्युनिकेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर, उसमें एसबीआई की ब्रांच थी। लाइब्रेरी भी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ करती थी, जो कि बाद में फिर इस समय की डायरेक्टर रिसर्च बिल्डिंग में गई थी, और उसके बाद फिर ये जो इस समय सेंट्रल लाइब्रेरी है वो बनी है। बस एक कैंटीन थी और कुछ कियास्क थे, जहाँ पर ये 456 हॉस्टल के पीछे जो टंकी है वहाँ पर, जहाँ पर बब्बू का आमलेट और फत्तू की लस्सी बड़ी फेमस थी। लेकिन उस समय मतलब इस माहौल में भी लोग बड़े खुश और एंथुसियास्टिक थे और कमिटेड टू देयर ड्यूटीज। किसी के पास स्कूटर नहीं होते थे, कार नहीं होती थी, केवल उन लोगों के पास स्कूटर था जो कि यूएस से रिटर्न थे, और उस समय डॉलर के अगेंस्ट जो वो चेतक मिला करता था स्कूटर, वही हुआ करता था। ये सारे कंस्ट्रक्शंस जो बाद में हुए, स्टेडियम, लाइब्रेरी, गांधी भवन, एडिशनल हॉस्टल्स, ये सारे ध्यानपाल सिंह वाइस चांसलर जी के टाइम पे हुए, और उन्हीं के टाइम में ये तमाम कॉलोनीज बनी हॉस्टल के सामने। तो अगर इस तरीके से ये कहा जाए कि डॉक्टर ध्यानपाल सिंह जो हैं वो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी कहा जाए उनको, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय तमाम अमेरिकन एडवाइजर्स हुआ करते थे, उनके बच्चे घुमा करते थे, उनके साथ हम लोग टेबल टेनिस खेल लेते थे। टाइगर भी जो है अक्सर कॉलोनी के अंदर देखे जाते थे। 1967 से यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, 1967 बैच में एडमिशन मिला, आईडी नंबर 3159। इंटरमीडिएट साइंस विथ मैथ्स किया था, इसलिए टेक्नोलॉजी में एडमिशन की इच्छा थी, लेकिन उसमें मिला नहीं। एग्रीकल्चर में एडमिशन मिला। हालांकि एग्रीकल्चर में एडमिशन के 15 दिन बाद हमको ऑफर आया कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको सीट मिल सकती है, लेकिन फिर एग्रीकल्चर में ही कंटिन्यू करना ठीक समझा, क्योंकि ट्राइमेस्टर सिस्टम था और 15 दिन निकल जाने का मतलब था कि काफ़ी लॉस, और उसको कवर कर पाना एक नए सिस्टम में। उस समय जो सेक्शन अलॉट होते थे, उस समय हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन के बीच में अलॉटमेंट के लिए इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ करता था। खैर, सफ़र शुरू हुआ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोहे की तलवार जब पकड़ाई गई घास छीलने के लिए और हाथों में छाले पड़े, तब डिग्निटी ऑफ लेबर महसूस हुआ कि हाँ क्या होता है, और उससे खैर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना, और ये भी हुआ कि इस शरीर से हम लोग कुछ किसी भी तरीके की मेहनत कर सकते हैं। सरप्राइज क्विजेज जो थे वो बहुत ही उस समय एक पैटर्न में थे, और बड़ी एंग्जाइटी रहती थी कि करीब किसी दिन जो है वो कहीं क्विज ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो बड़ा एक्साइटिंग हो गया वो। और उस समय डॉक्टर राव जो डीन थे, डॉक्टर एन के राव, वो क्लासेस विजिट करते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है, और स्टूडेंट से फीडबैक भी लेते थे। ग्रेड्स की डिफ़िकल्टी ये थी कि आप ये समझिए कि हमको 4.396 पर हमको यूनिवर्सिटी बर्सरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। देन केम पीसीपी, थर्ड ईयर। उस समय हमारा बीएससी एजी ऑनर्स प्रोग्राम 3 इयर्स का था। तो पीसीपी में आजकल की तरह ट्रैक्टर इस्तेमाल होने का वो नहीं था, खाली 2 पेयर बुलक्स के होते थे जो कि हम लोगों को टर्न वाइज अलॉट होते थे, और पंप इरिगेशन थी, वो भी उसका भी नंबर लगता था। तो हम उस दिसंबर 22 की रात को नहीं भूल सकते, 1969-70 की, जब इतनी भयंकर सर्दी थी, लेकिन पूरी रात जब हमने उस गेहूं की फसल में पानी लगाया
तो it was a comfort to be standing in the water, running water, rather than coming out of the running water or coming out of the field. तो इस तरीके से 1970 में यूजी की डिग्री पूरी हुई। फिर शुरुआत हुई एमएससी की। डॉक्टर बघेल जो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोफेसर थे, हमारे एडवाइजरी, उन्होंने हमारी कई बार हमारी ओपिनियनली मोटिवेट करने की कोशिश की कि हम प्लांट ब्रीडिंग में आए या एग्रोनॉमी में, जिसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही मन बना लिया था। तो एमएससी में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर में आईसीआर की जेआरएफ मिल गई 200 रुपीज़ की। दैट वाज ए ग्रेट कंसोलेशन टू मी। फिर एमएससी में 5 आउट ऑफ 5 ग्रेड पॉइंट बनाया। उस समय एमएससी में हमको एडवाइज़र मिले थे डॉक्टर आरसी अग्रवाल। वो आईवा स्टेट यूनिवर्सिटी में रिनाउंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अर्लो हेडी के उसमें पीएचडी करके आए थे। तो उस समय ये खबर फैली थी कि जो डॉक्टर अग्रवाल के गाइडेंस एडवाइजरशिप में जो 5 आउट ऑफ 5 कर लेता, उसको वो यूएस भिजवा देते हैं। और भिजवाया भी था उन्होंने पहले 1-2 स्टूडेंट्स को। तो हमने भी मेहनत की, 5 आउट ऑफ 5 आया। लेकिन हुआ ये कि हमारी एमएससी पूरी होने से पहले ही डॉक्टर आरसी अग्रवाल जो है वो पंतनगर से रिज़ाइन करके यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर होकर के चले गए। और वो डॉक्टर आरसी अग्रवाल के ही पास उस समय एक पूरे एग्रीकल्चर कॉलेज में कार होती थी। फिर पीएचडी शुरू हुआ 1973 में। उसमें CSIR फेलोशिप मिल गई। दैट वाज आल्सो ए हैप्पी मोमेंट, 400 रुपीज़ पर मंथ की। तो 1977 में फैकल्टी ज्वाइन की। तो इस तरीके से व्हाट आई फील कि आई गॉट रिवार्डेड एट एवरी स्टेप थ्रू माई हार्ड वर्क बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उस समय माहौल ये था कि खूब क्रिकेट मैच हम लोग होते थे, स्टाफ स्टूडेंट्स के इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस, स्टाफ स्टूडेंट्स के मैचेस, माहौल बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से पंतनगर जो है वो ऐसा मन को भा गया कि पंतनगर से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद निकलने की इच्छा ही नहीं है। हालांकि आरबीआई में हमको रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन मिल रही थी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, लेकिन पंतनगर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और इस तरीके से हमारा प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ। Sir, I still remember my first lecture on agri-economics. That was your class. You described that day demand and supply. And that was kind of love at first instance with economics. क्योंकि जितना विविडली आपने सारी चीज़ों को बताया था, मुझे लगा ये शायद सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर फील्ड में ये इम्पोर्टेंस रखती है। सो व्हेन डिड योर लव हैपन विद इकोनॉमिक्स? आई मीन, क्यों इकोनॉमिक्स और कैसे इकोनॉमिक्स हैपन हुए आपकी लाइफ में? वाई इकोनॉमिक्स? एक्चुअली जब 1967 में हमने अपना आईडी नंबर 3159 के साथ फर्स्ट ईयर बीएससी एजी शुरू किया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में दोनों में इकोनॉमिक्स के कोर्स थे। इकोनॉमिक्स रेमेडियल फर्स्ट में और इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंड में। तो उसको पढ़ाने के लिए डॉक्टर वीके पांडे आए और वो इलिनॉय यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके हाल ही में वापस आए थे। And he was a very smart, well-dressed fellow with superb communication and analytical skills. बड़ा अच्छा इम्प्रेशन लगा मुझे। यही लगा कि शायद इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर सब स्मार्ट ही होते हैं। और उन्होंने सब्जेक्ट को इतना जूसी और टेस्टफुल बनाया कि इकोनॉमिक्स से हम बहुत प्रभावित हो गए। और फिर जब उन्होंने चैलेंज भी किया कि हमारे कोर्स में ए ग्रेड नहीं आता जल्दी, लेकिन हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्राइमेस्टर्स में उनके सब्जेक्ट में ए ग्रेड आया।
तो उससे लगा कि हम इकोनॉमिक्स में अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहा भी है किसी ने कि इफ यू डू ए जॉब विच यू एंजॉय यू नेवर फील दैट यू आर वर्किंग। तो आज तक इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे लिए बिल्कुल एक म्यूजिक की तरह ही रहा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डॉक्टर वी.के. पांडे रिटायर हुए तो वो हमारी हेडशिप में रिटायर हुए, एंड इट वाज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर हिम दैट हिज स्टूडेंट रोज टू द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और फिर जब डिग्री पूरी हुई तो इकोनॉमिक्स में आने से पहले जब हमारे गाइड थे, एडवाइजर थे डॉक्टर बघेल, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाद में वाइस चांसलर हुए, तो उन्होंने पूछा डिग्री पूरी होते समय कि तिवारी व्हाट आर योर प्लान्स। तो हमने कहा कि सर आई वांट टू डू माय एमएससी इन इकोनॉमिक्स। ओह नो 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 नो, ही सेड इकोनॉमिक्स इज नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। एक्चुअली उस समय एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, इनका बड़ा बोलबाला था। कैरियर अपॉर्चुनिटीज उस समय उसमें अच्छी चल रही थी। तो खैर उनसे आर्ग्यू क्या करना था गाइड एडवाइजर से। हमने कहा कि सर आई विल थिंक ओवर इट, बट आई हैड ऑलरेडी मेड अप माय माइंड दैट आई विल गो फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स में आना हुआ, और आज मोड़ करके देखते हैं तो लगता है कि डिसीजन बहुत अच्छा रहा। डिवाइन पावर ने जो भी इंस्पिरेशन दी उस समय वो अच्छा ही रहा। तो इस तरह इकोनॉमिक्स में आना हुआ। सर, हम सभी जानते हैं कि आपने खुद को दायरों में बांधकर कभी नहीं रखा, एंड यू ट्राइड योर हैंड इन सेवरल फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, philanthropy. So, would you like to share with us your key areas of interest and what you are still pursuing, or rather trying to pursue? In addition to this, ये भी जानना चाहूंगा कि सक्सेस के क्या मायने हैं आपके लिए, having known the fact that you yourself have been involved in so many fields, you have succeeded almost everywhere. टीटी हमारा फेवरेट गेम रहा, और यूनिवर्सिटी की बी टीम में अराउंड 1979 हम थे उसमें। और टीटी के अट्रैक्शन की एक वजह ये थी कि जब हम 9th और 10th स्टैंडर्ड पंतनगर से कर रहे थे और 11th और 12th कर रहे थे, तो उस समय हॉस्टल खेलने जाते थे। तो उस समय यूपी स्टेट चैंपियंस नंबर 1, नंबर 2 अपने पंतनगर यूनिवर्सिटी में ही थे, ललित और दूसरे मालविया। ललित का गेम बड़ा डिफेंसिव था, ही वॉज ए टॉल हेफ्टी पर्सन, एंड मालविया वॉज ए मीडियम हाइट, वेरी हैंडसम। मालविया की टॉप स्पिन को खेलने के लिए कम से कम 2 मीटर पीछे भागना पड़ता था, लेकिन ललित का डिफेंस इट वॉज इनप्रिग्नेबल। वो वहीं क्लोज टू द टेबल खड़े होकर के सब रोक लेते थे। तो इस तरह टेबल टेनिस बहुत अच्छा लगने लगा। वैसे पंतनगर आने के बाद हमने क्रिकेट भी खूब खेला। हमारे कॉलेज में उस समय इंट्रा डिपार्टमेंटल मैचेस होते थे स्टाफ स्टूडेंट के, और इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस भी होते थे सुभाष भवन के पीछे के ग्राउंड में, या जो आज का इंटरमीडिएट कॉलेज है पंतनगर उसके ग्राउंड में हम लोग खेलते थे। चाइल्डहुड में तो खाली प्राइमरी स्कूल में लखीमपुर खीरी में 5th, 6th, 7th, 8th तक जो पढ़ाई की, उस दौरान तो खाली फुटबॉल और पतंगबाजी और कंचे यही गेम होते थे। पंतनगर आने के बाद क्रिकेट और बैडमिंटन भी हमने खूब खेला। म्यूजिक में माउथ ऑर्गन हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, और उसके लिए हम बराबर कोशिश में हैं कि आई बिकम ए बेटर प्लेयर ईच डे। उसके लिए ऑनलाइन लेसन्स भी लेते रहते हैं। और पंतनगर में डिपार्टमेंट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने कई परफॉर्मेंसेस दी। गांधी भवन में भी 2 परफॉर्मेंसेस दी थी।
और वैसे ड्रम जो है वो दैट इज इन माय विश लिस्ट। हालांकि कभी अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली, लेकिन हमको ड्रम जो है वो बहुत जो है अट्रैक्ट करता है। और नेक्स्ट गेम्स की बात करें तो मार्शल आर्ट्स हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट्स। और ब्रूस ली की जितनी फिल्में हैं वो हमने सब देख रखी हैं। कुंग फू या मार्शल आर्ट्स ये नॉट ओनली इट इज ए सेल्फ डिफेंस टेक्निक बट आल्सो इट इज ए वे टू कीप वन सेल्फ फिट एंड फाइन। वैसे इस समय हम अपने को बिजी रख रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट। यहाँ पर हमारा सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें करीब 248 मेंबर हैं और उसमें बड़ी मेंबर्स में प्रोफेशनल डाइवर्सिटी खूब है। रेलवे से भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, जुडिशरी से भी हैं, पुलिस से भी हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, लॉयर्स भी हैं, वगैरह वगैरह। तो उनके साथ होती है और हम एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी हैं और एनुअल मैगजीन निकालते हैं। और बाकी थ्रू आउट द ईयर हम लोग फिलैंथ्रॉपी में काफ़ी बिजी रखते हैं अपने को। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट बैच के पंतनगर के डॉक्टर अमरीश कुमार हैं। 1960 बैच के वेटरनरी से ग्रेजुएट हैं, जो कि बाद में काफ़ी लंबे समय तक डीन वेटरनरी साइंसेज, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, और बाद में विथ फुल पावर्स वो वाइस चांसलर भी रहे। हम लोग वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसमें हम लोग जा करके मदद करते हैं। अगर किसी को पानी की जरूर दिक्कत हो रही है तो हम लोग नल लगवा देने का अरेंजमेंट कर देते हैं। और बाकी जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं एनवायरनमेंट पे हम लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं और मेडिकल कैंप भी करते हैं। वेटरनरी कैंप लगाया जाता है आसपास के गांव में और मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी हैं हमारी टीम में। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और एक महीने में करीब 3 एक्टिविटी तो हो जाती हैं। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग, एक जनरल बॉडी मीटिंग और एक कोई हमारे जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें से कोई एक्टिविटी पर एक आइटम हो जाता है चैरिटी का। हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका ये रहा कि आई टुक द लाइफ एज इट केम माई वे। पीएचडी करने का कोई इरादा नहीं था, टीचर बनने का कभी सोचा नहीं था। पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन हमारे बैच के लोग जो है उस समय बैंकिंग में बूम था तो सब बैंक में जा रहे थे, तो हम भी वेट कर रहे थे कि हमारी भी कोई कॉल आएगी। इस बीच में एडमिशन भी हो गया लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बीच में हमको उस समय के रजिस्ट्रार डॉक्टर ओएस मिश्रा और हमारे ब्रदर श्री आर के तिवारी, उन्होंने बहुत हमको एनकरेज किया, परसुएड किया कि नहीं पीएचडी कर लेना अच्छा होता है। तो खैर पीएचडी किया। फिर तो भले ही हमारे एस्पिरेशंस में या हमारे प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने पीएचडी किया और अच्छे तरीके से किया, क्योंकि हमारे लाइफ पैटर्न में यह है कि हम जो भी करें, जो भी काम हाथ में ले, अच्छे तरीके से करें। तो आई टेक द लाइफ एज इट कम्स माई वे, बट केयरिंग वन थिंग दैट नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी नियर परफेक्ट, so that stakeholders don't get any opportunity to point finger. तो इसलिए प्लानिंग और प्रिपरेशन they have been basic to my nature, because I am not a genius. I know that I can substitute intelligence through hard work, but not the other way. तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस तरीके से जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस फिक्र को धुएं में नहीं उड़ाया, फिक्र को मैंने पाला, उसकी परवाह की और प्लानिंग और प्रिपरेशन के द्वारा फिक्र का जो है उसको रिजॉल्व किया। इसीलिए शायद अब्राहम लिंकन वंस रोट टू द टीचर ऑफ हिज सन दैट टीच हिम नॉट ओनली हाउ टू सक्सीड बट आल्सो हाउ टू हैंडल फेल्योर। And this is very important because success is never ending and failure is never final. Sir, you have very beautifully correlated dependence and success. Generally we see कि परिवार, फैमिली के सपोर्ट
के बिना लोग इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते जितना कुछ आपने किया. So I'm sure your family would also have helped you, supported you. So कौन-कौन है सर परिवार में? थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली के बारे में. फैमिली में एक बेटा, फ्रेंच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन केप जेमिनी में सीनियर डायरेक्टर है. डॉटर इन लॉ सेपिएंट मल्टीनेशनल कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव थी 5 साल पहले, अब जॉब छोड़ दिया है. 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, एक बेटी है, शी मैनेजेस हर हाउस होल्ड, गुड़गांव में है. सन इन लॉ कंसेंट्रिक्स कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सीनियर प्रैक्टिशनर है. वाइफ हमारी लखनऊ से हैं, उमा तिवारी. घर परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत ही निष्ठा, लगन और मेहनत से निभाया है. सभी को धन्यवाद. So now let me get you back to the university. Sir, our university has had an extremely glorious past. But ever since it came under state purview, कुछ लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि this glory has now got diluted a bit. तो क्या सहमति रखते हैं इस कथन से आप? And if I ask you how to redeem it, then what would you say? Sir. यूनिवर्सिटी की ओल्ड ग्लोरी के संबंध में जब बात उठती है तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी तरफ ध्यान जाता है. उस समय यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी. फार्म से और सीड प्रोडक्शन से इतनी आमदनी हो जाती थी कि आत्मनिर्भरता होने के नाते यूनिवर्सिटी जो है अपने एक्ट्स और स्टैट्यूट्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली चलती थी. कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है वो था ही नहीं. एक बार सुनने में आता है कि मिसेस इंदिरा गांधी पंतनगर एयरपोर्ट से होते हुए नैनीताल जाना था तो डॉक्टर ध्यानपाल सिंह ही डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट टू अटेंड हर. बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या PMO ऑफिस से उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने कह दिया कि I was busy in a work which was of greater national interest than attending Mrs. Gandhi. तो कुछ नहीं हुआ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई. अब इस समय क्या है कि इस समय फाइनेंसेस के लिए हैवीली डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पर. तो इस नाते जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो कि अक्सर हमारे जो एक्ट्स और इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सुपरसीड करते हैं. तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि और जो यूनिवर्सिटी की जो स्पिरिट थी एक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट्स से जो निकलती थी वो स्पिरिट थोड़ी डाइल्यूट तो हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी होता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है. उस समय सर्विस रूल्स भी ऐसे थे कि हर फैकल्टी मेंबर को, चाहे उसका अपॉइंटमेंट टीचिंग में हो या रिसर्च में हो या एक्सटेंशन में हो, उसको तीनों फंक्शंस परफॉर्म करने होते थे. दिस ट्रायोलॉजी यूज्ड टू एग्जिस्ट, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन. और उस समय ये था कि अगर किसी को अपॉइंटमेंट किसी लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट में मिला है तो उसमें ये MOU होता था कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी इनको इक्विवेलेंट पोजीशन में परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लेगी. तो उससे जो स्टाफ का कमिटमेंट और उसकी सर्विस सिक्योरिटी बनी रहती थी और रिसर्च आउटपुट बड़ा अच्छा मिल जाता था. उस समय फाइल क्लियरेंस के भी नाम्स थे कि एक किस डिपार्टमेंट से कौन सी फाइल 3 दिन में निकल जानी चाहिए, 2 दिन में निकल जानी चाहिए, 1 दिन में निकल जानी चाहिए. उस समय जो VC और डीन ऑफिस आते थे तो वो डेली रिसर्च स्टेशन का मुआयना करते हुए उसका पूरा राउंड लेते हुए आते थे. दूसरा ये कि उस समय यूनिवर्सिटी में मल्टी कल्चर सिस्टम था. उसमें हैदराबाद से भी, केरला से भी, उड़ीसा से भी, बंगाल से भी, बिहार से भी, हर जगह से स्टूडेंट्स थे. तो इस मल्टी कल्चरल सिस्टम की वजह से एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग तो बेहतर होती थी, साथ में एक कंपटीशन और एक्सीलेंस की भावना को भी जो है थोड़ा सा बल मिलता था. Sir, you are known as a very progressive teacher.
So, what's your take on use of technology in education? Do you consider this as educational reform or a technological overuse? एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात जब उठती है तो हम स्मार्ट क्लासरूम्स को लेकर के बड़ा प्राइड महसूस करते हैं, एज इफ इट इज द प्राइम थिंग इन एकेडमिक एक्सीलेंस। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आते हैं, उसमें कभी बिजली नहीं है या कभी कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया। फिर उसमें पैराग्राफ के पैराग्राफ हैं तो स्टूडेंट का फोकस जो है वो पूरा जो है उसको नोट करने में है, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो अब स्मार्टफोन उनके पास भी है, वो उसकी फोटो खींच सकते हैं। हो क्या रहा है कि इसमें एक तो क्वेश्चनिंग का बढ़ावा नहीं मिल पाता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक टीचर और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट ना हो तब तक इफेक्टिव टीचिंग हो ही नहीं सकती। इसमें सारी बात जो है वो पावर पॉइंट की तरफ टीचर भी देखता रहता है, पावर पॉइंट की तरफ स्टूडेंट भी पावर पॉइंट की तरफ रहते हैं। और हमें ध्यान है कि हमारे अभी भी कई स्टूडेंट से हमको फीडबैक मिलता है कि सर जब आप चाक से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम खींचते थे तो हम लोग देखते थे आपका हाथ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ चढ़ा, फिर कहाँ उतरा, फिर कहाँ स्ट्रेट हो गया। तो बोले सर हमें तो अभी तक याद है वो डायग्राम्स। अब पावर पॉइंट में आकर के बटन पुश किया और डायग्राम फट से सामने आ गया तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो शुरू कहाँ से करे उस डायग्राम को खींचने के लिए। तो इसलिए जो कॉम्प्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा कमजोर तो हुई है स्टूडेंट्स की। हमारे IIM लखनऊ में संजीव कपूर फुल प्रोफेसर हैं, लेकिन वो कहते हैं सर हम तो आपकी तरीके से चाक से पढ़ाते हैं क्योंकि जो है वो इससे कॉम्प्रहेंशन और स्टूडेंट का फोकस ज्यादा अच्छा रहता है। So you believed in one-to-one interaction. बहुत अच्छी तरह याद है मुझे कि हम सब कहीं ना कहीं एक पर्सनल कनेक्शन आपसे फील करते थे, महसूस करते थे, क्योंकि हमारी बातचीत केवल क्लासरूम तक ही सीमित नहीं थी। उसके बाद भी आपसे कई चीज़ों के लिए सलाह लिया करते थे। प्लीज टच अ लिटिल बिट अबाउट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स एज अ होल। मुझे ध्यान है कि एक बार क्लास छोड़ करके हम आ रहे थे तो पीछे पीछे एक स्टूडेंट आया भागा हुआ, बोले सर एक क्वेश्चन पूछना है। हमने कहा क्लास में नहीं पूछा तुमने? और बोले सर वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन। हमने कहा क्या? बोले सर ये बताइए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? तो एक सेकंड को हम भी जो है थोड़ा सोचने में टाइम लगा, फिर हमने देखा कि हम करते क्या रहे इतने साल से जो हम इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि अभिनंदन शुक्ला को एग्जाम देते समय दिसंबर की भयंकर ठंड में मैंने देखा था ये कोट पहन के नहीं आया, तो हमने इसकी पीठ पे कोट हाथ रख के कहा था कोट पहन के क्यों नहीं आया, आगे एग्जाम नहीं देना है क्या? तो बोले सर सॉरी। बोले सर पापा भी ऐसे ही डांटते हैं। तो एक तो डिस्टेंस ये हुआ जहां टीचर पेरेंट का रोल कर रहा होता है। फिर कभी कभी कई स्टूडेंट्स चैम्बर में आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, और जब वो बताते थे तो बिल्कुल इस तरीके से बताते थे जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है। तो ये टीचर का पेरेंट फ्रेंड वाला रोल हो गया। और क्लासरूम में तो वो हार्ड टास्क मास्टर है ही है, सब्जेक्ट सिखाना है। तो दूरी कहाँ हुई? सबसे कंपैरेटिवली दूरी क्लासरूम में ज्यादा हुई, उससे कम जब पेरेंट का रोल कर रहे हैं तब हुई, और उससे कम हुई जब वो फ्रेंड का रोल है। यानी टीचर को एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तरह काम करना है। उसको ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन का भी काम करना है, उसको फाइटर जेट वाला भी काम करना है, और उसको इंटरसेप्टर का भी काम करना है। तो टीचर की दूरी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, तो स्टूडेंट को समझ में आया। सर, इट हैज बिकम एन एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन व्हिच इज फुल ऑफ स्ट्रेस, और ऐसे में मेंटल हेल्थ एंड इनर पीस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस के हो गए हैं।
हम सभी वाकिफ हैं, एक जो दर्दनाक वाकया हुआ अभी, एक फिल्म एक्टर हैड कमिटेड सुसाइड, स्ट्रगलिंग विद ऑल दिस। सो आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा पंतनगर जैसी शांत और सुकून भरी जगह पर बिताया, या यूं कहें कि जिया। सो क्या कुछ लेसन्स रहे सर आपकी लाइफ के जो आप अपने स्टूडेंट्स यानी कि हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे? लाइफ लेसन्स की बात करें तो पंतनगर में हमने करीब 46 साल बिताए। 11 साल करीब छात्र जीवन के रूप में और 33 साल फैकल्टी मेंबर्स के तौर पर। और हमने पंतनगर को चाइल्डहुड से लेकर के उसके एडल्टहुड तक को देखा है। जो लेसन्स की बात करते समय हम इस बात को अंडरलाइन करना चाहेंगे कि अल्टीमेट गोल शुड बी मेंटल हेल्थ एंड इनर पीस। सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली माई सेल्फ that results from shortcuts are short-lived, and in this cosmos what you give comes back. Or if one's mind is engaged in worrying about results while taking action, कर्म करते समय अगर रिजल्ट की तरफ ध्यान बटा हुआ है तो हमने ये देखा है कि परफॉर्मेंस गोज डाउन, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे गेम्स हो। एक बार हमें ध्यान आ रहा है इस बाबत कि 1978 में हम यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में लकी डबल्स का सेमीफाइनल खेल रहे थे और सेमीफाइनल में हमारी एक भी फोरहैंड शॉट नहीं लगी, क्योंकि हम इसी में थे कि पता नहीं जीतेंगे हारेंगे रिजल्ट। तो ये सब बातें होती हैं। दूसरा हमने ये भी देखा कि हायर द प्योरिटी ऑफ सोल, हायर द हेल्प फ्रॉम डिवाइन पावर। अगर अपने स्ट्रेस को कम रखना है, मेंटल हेल्थ और इनर पीस को रखना है, तो एवॉइड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड कंपैरिजंस विद अदर्स। कंपैरिजन करना है तो अपने से कंपैरिजन करें। वन शुड ट्राई टू बिकम ए बेटर पर्सन ईच डे बाय लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। क्योंकि मैच्योरिटी जो है वो लाइफ में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रगल फेस्ड। तो अगर मैच्योरिटी लानी है तो फिर इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के पास हॉबीज होनी चाहिए जो कि उसको एंगेज रख सकें और लोनलीनेस की फीलिंग ना होने दें। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पर्टिकुलरली पोस्ट रिटायरमेंट। अगर बिकॉज लोनलीनेस इज फाउंड टू बी द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम एमंग सीनियर सिटीजन्स। तो अगर हॉबीज नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे जो है आदमी अपना टाइम व्यतीत करे और जिंदगी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता रहे। तो इस तरीके का जो विजडम है ये हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आया है। और मैं ये कहूँगा कि इन बातों को जो जितनी जल्दी अपने जीवन में उतार सके मैं उसको उतना ही भाग्यशाली कहूँगा, क्योंकि इन सब बातों के द्वारा जो है वो अपना मतलब ये बातें जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का फार्मूला साबित हो सकते हैं। तो दैट इज हाउ आई फील दैट वन शुड ट्राई टू डू बेस्ट विदाउट केयरिंग फॉर रिजल्ट्स एंड कीप मेंटल हेल्थ एंड इनर पीस इंटैक्ट। सर, एक बड़ा दिल और बड़ी ही परिपक्व सोच चाहिए कि अपने ही स्टूडेंट्स को हम गुरु का दर्जा दे दें। हम लोग तो खैर आपसे पढ़े हुए हैं तो हमें पता है आप किस तरीके से सोचते हैं, कितने प्रोग्रेसिव रहे हैं आप। लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए दैट शुड बी अ रेवलेशन दैट ही कंसीडर्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज हिज टीचर फॉर मार्शल आर्ट्स एंड सर स्टिल प्रैक्टिसेस मार्शल आर्ट्स इवन टुडे। आज उनके वही गुरु या बोले कि वही शिष्य सर के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो सर, एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। सर प्रणाम।
My ID number 19386, College of Agriculture 1991 बैच, श्रीनिवास। सर मैं आपसे 2 कोर्स पढ़े थे और जो आपकी जो कन्वेंशनल टीचिंग सिस्टम से हटके जैसा आपका स्टाइल था उससे हम काफ़ी प्रभावित रहे हम अपनी लाइफ में। और आपका मुझे अभी भी याद है मैं आंध्र प्रदेश ओंगोल से आया था। मेरे लिए काफ़ी दूर था पंतनगर उस समय, 2 दिन की जर्नी थी। बट जो 4 साल जो मेरी बाकी ज़िंदगी का जो चेंज लाया पंतनगर आप जैसे टीचरों ने, तो मैं हमेशा उसके लिए आभारी रहूँगा। एक बार आपको पता चला कि मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, कराटे प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। तो वो मेरे लिए बहुत एक एस्टॉनिशिंग मोमेंट था, क्योंकि उस समय टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में काफ़ी डिस्टेंस होता था और मैं भी एक छोटा गांव से आया था उस समय, और वो थोड़ी सी डिस्टेंस हमेशा मुझे खलती थी कि नहीं, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो आप अपनी जो बिल्कुल फॉरवर्ड या मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स या आप जैसे पढ़ाते थे, तो उससे हम काफ़ी सीखने को मिला हमको। और मैं आपका घर हर हफ्ते आता था हॉस्टल में ये बोल के कि देखो मैं तिवारी सर को कराटे सिखाने जा रहा हूँ, और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता था जब हमारे बैचमेट्स में। और आप भी इतना सीरियस स्टूडेंट रहे हैं उसका, तो आई ऑलवेज एडमायर the way you conducted yourself as a good student. At the same time you maintained the decorum of a teacher to me, and that relation I could never forget in my life. और हमेशा ये मुझे याद दिलाता है कि we need to be a lifelong student. If we want to really learn something, we should not be really shy away to reach out to anyone in the system to learn. So ये चीज़ आपसे मुझे सीखने को मिला था। एंड सर हम आज जो भी हैं उसका पूरा श्रेय आप जैसे टीचरों को जाता है। खासकर मैं तो आपको भी मानता हूँ जो डिफरेंस क्रिएट किए थे हमारे एटलीस्ट मेरे लाइफ में। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप और मैडम और आपके जो फैमिली हैं, सब परिवार हैं, खुश रहें, आबाद रहें। Stay well and stay healthy, sir. Thank you very much. And I like to thank Nitin and this program for giving me the opportunity to connect you back. बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मार्शल आर्ट्स टीचर के श्रीनिवास को धन्यवाद देता हूँ फॉर रिफ्रेशिंग माई मेमोरीज एंड रीसीमेंटिंग माई बिलीफ that a learner can always discover his teacher. I take pride that he is directing the Bears Crop Science Group to its heights. My best wishes to him. Sir, we all know about your finesse with mouth organ. हम सब ने तो कॉलेज के दिनों में कई बार सुना है, रिलिश किया है रादर। तो क्यों नहीं हमारी ऑडियंस के लिए भी एक आपके दिल के जो करीब हो कोई धुन प्लीज एक छोटा सा एक प्ले कर दीजिए प्लीज।
सर यहां तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी फेल हो गया। दैट वाज माइंड ब्लोइंग। यू आर एज स्प्लेंडेड एज यू ऑलवेज वर। शायद आप सुनाते जाएं और हम सुनते चले जाएं। ऑडियंस प्लीज लीव योर कमेंट्स अगर आपको अच्छा लगा, विच आई एम वेरी श्योर ऑफ, क्योंकि एक आर्टिस्ट का ना, कितना भी बड़ा हो जाए आर्टिस्ट, उसकी जो सच्चा सेटिस्फैक्शन होता है वो ऑनेस्ट फीडबैक से ही होता है। सर thank you very very much for this beautiful melody. Thank you. So you taught for so long, and in your career you have turned so many raw students into efficient professionals. Or I can just imagine कि एक गुरु के लिए इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात होती होगी जब उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में ऐसे शाइन करें, उनका नाम रोशन करें। तो क्या कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स रहे हैं जो आज भी आपको याद आते हों, या फिर जिनसे आप आज भी टच में रहते हों? कुछ आप जिक्र करना चाहेंगे उनका? पंतनगर के स्टूडेंट्स तो हर जगह छाए हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर है, एग्री कारपोरेट सेक्टर है, स्टार्टअप हैं, बिजनेस है, फार्मिंग है, सिविल सर्विसेज हैं, तो सभी पे गर्व करने लायक है। बैंक्स में तो इतने छाए हुए हैं कि कभी कभी जोक में कहते हैं कि अगर किसी भी शहर में बैंक के सामने जरा पंतनगर से जोर से नाम ले लें तो कोई ना कोई बैंक से निकल आएगा जो पंतनगर का होगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका हम यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं। गर्व करने लायक तो सभी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर बीएल ध्यानी, वो रिटायर हुए एज हेड सोशल साइंस डिवीज़न देहरादून में सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से। एक हमारे पीएचडी स्टूडेंट को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड आईसीआर का मिला 2005 में फॉर आउटस्टैंडिंग पीएचडी रिसर्च। उन्होंने हमारी गाइडेंस में अपनी पीएचडी डिसर्टेशन लिखी थी। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे तो उस समय एक टीम फाइनेंस की कोई ओलंपियाड टाइप की कोई इवेंट हो रही थी दिल्ली में, उसमें गई थी और प्रभात चतुर्वेदी टीम को लीड कर रहे थे। तो टीम के लौट के आने पर पता लगा कि वहाँ पर करीब 120 टीम थी और उसमें आईआईएम्स और आईआईटी से स्टूडेंट थे। और ये जान के हमको गर्व हुआ कि हमारी पंतनगर की एग्री बिजनेस टीम जो है स्टूडेंट्स की, वो टॉप 10 में वो आई। अब दूसरी बात है कि वो फाइनल में सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाई काबिलियत होने के बावजूद कि पंतनगर में लैपटॉप पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग उस समय तक नहीं दी गई थी। तो आईआईटीएंस और आईआईएम्स के स्टूडेंट्स जो है उनकी लैपटॉप पर स्पीड बहुत अच्छी थी, इसलिए वो आगे निकल गए उस पर। इंडियन आईआरआई के इकोनॉमिक्स डिवीज़न की हेड डॉक्टर अलका सिंह, उन्होंने पीएचडी हमारी गाइडेंस में की थी। डॉक्टर सुरेश पाल, वो हमारे एमएससी स्टूडेंट थे जो कि डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में हैं दिल्ली में। आईआईएम लखनऊ में फुल प्रोफेसर संजीव कुमार, वो हमारे एमएससी एडवाइजी थे। वहीं लखनऊ में ही आईआईएम में डॉक्टर मायाकांत अवस्थी हैं, वो हमारे पीएचडी एडवाइजी थे। प्रभात चतुर्वेदी इस समय सीईओ हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरीश रावत वाइस प्रेसिडेंट हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। एचएस चुग हमारे एमएससी स्टूडेंट रहे, वो इस समय आईएएस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में है। नीरज शर्मा जो कि हमारे स्टूडेंट रहे, वो नाबार्ड से डेवलपमेंट ऑफिसर रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपना कंसल्टेंसी खोला, बहुत सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं दिल्ली में। तरंग श्रीवास्तव हमारे स्टूडेंट रहे, वो इस समय जापान में मित्सुई बुसान में एग्रो डिवीज़न में बहुत ही सीनियर पोजीशन पर हैं। एक जिक्र करना चाहेंगे हम प्रियंक पाठक का। प्रियंक पाठक बीएससी एजी किया, उसको
राइट लेग में बोन कैंसर हुआ, थोड़ा लेट स्टेज में डायग्नोस हुआ। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट चैप, तो हमारे से इंटरेक्शन करने के लिए बहुत आता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इलेक्टिव्स किए थे। तो उसका जो है वो ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद उसकी लेग एम्प्यूटेट करनी पड़ी। इस कीमोथेरेपी से लेकर के सर्जरी और एम्प्यूटेशन तक का जो उसका पेनफुल जर्नी रहा, उस बीच में उसने IIM अहमदाबाद क्रैक किया। उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी में दिल्ली जोन में टॉप किया, लेकिन बाद में उसका कैंसर जो है वो लंग्स तक और आ गया, और अल्टीमेटली उसका जो है वो स्वर्गवास हो गया ही। उसके नाम पर हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया था। 1,60,000 की धनराशि हम लोगों ने इकट्ठा की थी, जिसमें कि अभिनंदन शुक्ला, जो कि IIM अहमदाबाद से निकले हमारे BSc AG स्टूडेंट थे, वो शायद इस समय ऑस्ट्रेलिया में रेड बुल में हैं, और अविनीश त्रिपाठी, जो कि BSc AG पन्नागढ़ से थे, बाद में IMT गाजियाबाद से उन्होंने किया। ब्रिटेनिया में बहुत ही वो सीनियर पोजीशन पर हैं। इन लोगों ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया था, तो 1.6 लाख करीब हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो 2010 तक जब हम वहाँ थे तो उसको हम देखते रहे थे। उसके लिए हमने ये स्कॉलरशिप जो है फाइनल ईयर के बेस्ट स्टूडेंट के लिए रखी गई थी, और इसके लिए एक मेरिट इंडेक्स, ओवरऑल पर्सनालिटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हुए मेरिट इंडेक्स तैयार किया था। 2010 तक तो चलती रही, लेकिन चूंकि स्कॉलरशिप उसके इंटरेस्ट से आती थी और इंटरेस्ट रेट बराबर गिर रहा था, तो 1.6 लाख से जो भी अर्निंग्स होती थी उसमें अब स्कॉलरशिप का अमाउंट शायद बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। तो स्कॉलरशिप कुछ वो डॉर्मेंट सी पड़ी हुई है। मैंने सजेस्ट किया था कि उसके अमाउंट से एक प्रियंक पाठक गोल्ड मेडल लॉन्च किया जाए, लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई हमको पता नहीं अभी। रजत वर्धन, जो अपने पन्नागढ़ के ग्रेजुएट रहे, उन्होंने अपना कुछ साल पहले स्टार्टअप शुरू किया एग्री सप्लाई चेन पर, बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही उन्होंने जो है इसमें सक्सेसफुल इनरोड्स बनाए हैं। ऐसे एक नेपाल के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक विकास पौदेल हमारे MSc स्टूडेंट रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से PhD किया उन्होंने, और वो इस समय शायद नेपाल में वापस आकर के एग्री डिवीज़न में बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है जिस पे कि स्टूडेंट्स का नाम लिया जा सकता है, गर्व की अनुभूति होती है। हमारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से अच्छा करते हुए पंतनगर का नाम रोशन करते रहें, यही अभिलाषा है, यही भगवान से कामना है। इसी कड़ी में हमारे मनोहर दत्त पांडे, जिन्होंने पंतनगर में पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच के फाउंडर ब्रांच मैनेजर रहे और अपने ग्रेजुएट हैं, वो अभी DGM आरा बिहार में पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। हमारी PhD स्टूडेंट 1994 की डॉक्टर लतिका शर्मा इस समय महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एक MSc स्टूडेंट डॉक्टर BC रॉय इस समय प्रोफेसर हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी बंगाल में। एक हमारे स्टूडेंट अजय पाल सिंह, वो रिटायर हुए उत्तर प्रदेश लैंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन पर। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ अंकित शर्मा of 2005 batch, who after doing his masters from Symbiosis Institute of Management did his masters in business economics from Columbia University, New York in 2019,
and before that he did his advanced certificate program in international finance in 2018 from Harvard Business School. हमारे पंतनगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जिन्होंने IIMA में जगह बनाकर ये सिद्ध किया कि हम किसी से कम नहीं, उसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए। 2007 बैच के सौरभ कुमार पांडे, इन्होंने इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस 1 साल पहले लॉन्च किया, उसके डायरेक्टर हैं नोएडा में, और साथ ही साथ स्किल एडवाइजरी सर्विसेज भी शुरू की। वाह, क्या रूहानियत थी इस बात में। शत शत नमन आपको सर। आपने देश और दुनिया को कितने नगीने तराश कर दिए, और बड़ा धन्यवाद आपको कि आप यहां आए, आपने हमारे शो का हिस्सा बने। सर, जब आपसे पढ़ते थे तो आपकी क्लास खत्म होने पर यही लगता था कि इतनी जल्दी कैसे वक्त बीत गया, और आज इतने सालों बाद आपसे जब मिला हूं तो फिर से कुछ वैसा ही एहसास हो रहा है। बट कांट हेल्प इट। सो जाने से पहले सर कुछ कहना चाहेंगे अपने पंतनगर, हमारे पंतनगर के लिए? I sincerely thank all the listeners of this episode. I am overwhelmed by the so thoughtful responses that I received on my Facebook wall regarding this episode. I don't have words to express my gratitude for the love shown by Pantnagar alumni and my dear students. I have always considered my all students as my treasure. I am glad to see that they now occupy senior positions and make Pantnagar proud. I would urge them again to distinguish themselves as Pantnagarian by their thoughts, words and deeds. I sincerely thank Alok and Nitin and their team for taking pains in preparing this episode. Have a nice time, young friends. Thank you. Friends, it was Dr. Tiwari who has been inspiring us and will keep inspiring us for years to come. I hope you liked and drew some inspiration from today's show. So, आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितने लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड व्यू किया और कितनी कंट्रीज में व्यू किया, नहीं बताऊंगा। आज केवल इतना बताना है कि छाती चौड़ी हो गई है हमारी, इतना हौसला, इतनी ताकत मिली है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। और इस ताकत ने हमें जो हौसला दिया है ना, let me share with you that now we are going to make Stars of Pantnagar an even broader platform, which will now be more inclusive and more interactive. So बहुत जल्द हम अपने नए शोज, yes, you heard it right, it's not a show, it's shows. So बहुत जल्द हम अपने नए शोज आपके सामने ले करके आ रहे हैं. So please do follow our official FB page to get latest updates. And yes, if you have any query, feedback, suggestion about our content, about sponsorship, about funding, you may reach out to us on our official website or official FB page. So stay safe, stay healthy, and keep shining.